Good evening. Good evening, Samat. Good evening, sir. Uh, we'll take. Okay. I invited Anand Bhai to speak because he will give a clear picture about Nifty. How many points it will move, or 10 points, 20 points, or 25 points. Anand Bhai, if you are free, please accept the request. Okay. In today's news, Warren Buffett sold Paytm at 800 crore loss. So this thing about Warren Buffett that whatever he does is right goes for a toss. If Warren Buffett can lose, how much money we can lose? Just do the and this market वो चार स्क्रिप्ट चलता है और बाकी सब सो जाता है. देखते हैं कितना खेल. The total outstanding in stock futures is 284,000 crores. I don't know what will happen with the exit poll on 30th. I had posted a post saying that the results will be wash out. I did not specify anything. So one gentleman said, ये प्राणी को 12,000 आने बिना अभी what exit poll has to do with 12,000 और प्राणी क्या. I don't know what's wrong with people. If you don't like my saying anything, don't listen to me. Don't read. And if you want to write whatever you want. This market is very, very deceptive. It's like a labyrinth. It's like a चक्रव्यूह. आप घुस पाओगे, निकल नहीं पाओगे. Her Tata communication goes up from 1717 to 1771 today and comes back again. ऐसे बाजार में आप क्या करोगे भाई? Anyway, there is nothing much to talk about the markets. Samat, if you have anything. Hey, sir, volumes are pathetic. One point to note about this market is for the last 1 month, the volumes have been very pathetic in cash and futures both. Plus, the movement in the last 2 days is also in a very narrow range. So, whoever would be playing Nifty buy and sell would have lost. Hmm. So that's why people have lost actually a hell lot of money in this month itself, if you ask me, sir. And plus, SEBI is saying to go for long-term investments, but they are only advocating it on the paper side. But here, daily Nifty, Bank Nifty, Mid Cap Nifty uh, are having expiries, sir. So very difficult to manage actually, sir, in a very narrow range. In one of the spaces I regularly go, one gentleman who advocates Bank Nifty 5 minute and 30-minute charts is talking of 2030, says P ratios are useless.
अभी जब ऐसी बातें आ जाती हैं, हाँ बोलते हैं दिसंबर में 20-30 बिलियन डॉलर का इनफ्लो होगा, तो आई थिंक देर इज सी caution meaning what will you do if a mutual fund decides कि आज ये शेयर लेना है, कोई भी भाव में लेना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, पैसे का ताकत है, इट्स नॉट अ नेचुरल मार्केट, दैट्स व्हाट आई वुड से। देव भाई बोलो, अब बोलिए, कोई भी बोलिए। या कमल भाई बोलो। जी गुड इवनिंग शरद जी। गुड इवनिंग समर जी। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली ना, जैसे अगर सपोज किसी का 4-5 साल का व्यू है या 8-10 साल का व्यू है, तो अगर उसको जैसे कोई लमसम या अगर स्टॉक्स में ही लेना है, कुछ 5-1 साल का भी या 10 साल का भी हो, तो मतलब कौन से सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं? वैल्यूएशन तो ऑलरेडी काफी हाई है लार्ज कैप में, तो लगभग। मैं आपको 15 साल का व्यू से बता सकता हूँ। जी सर बता दीजिए। जेट एयरवेज ले लो। सेक्टर वाइज सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक? नहीं, सेक्टर नहीं, कंपनी वाइज, जेट एयरवेज, यूनिटेक, जेपी एसोसिएट, वो ले लो 15 साल। अरे सर, आप कैसा बात करते हो? किसने देखा है 5 साल ना 10 साल? अब पिट जाओगे भाई। ये मैं बोला ऑलरेडी वैल्यूएशंस महंगे हैं, वेट करना सही रहेगा, वही तो ठीक था। लेकिन मैं वो करते कि सेक्टर वाइज कुछ ऐसा स्पेसिफिक लग रहा होगा, तो इसलिए पूछा सर। उससे अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर को पूछ लो यार, अच्छा रहेगा। हम लोग को क्या मालूम, हमको तो अगला मोमेंट क्या होने का है वो नहीं मालूम है। अगला मोमेंट श्वास आएगा कि नहीं पता नहीं है, तो 10-20 साल का तो क्या बात करें हम। पहले तो कमल भाई आपके पास जो स्टॉक है उसमें जो भी प्रॉफिट है उसको पहले ब्लॉक करो ना। नहीं, वो तो ऑलरेडी निकाल दिया है सर। जैसे ना 1 लाख अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रखना है, तो अभी 30,000 मैक्सिमम है, 30-40,000। बाकी बाकी जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं दे रन बाय पोजीशंस। फ्यूचर की जो पोजीशन है वहां पर अगर आपका रिजल्ट खराब आता है कोई भी फ्यूचर ऑप्शन वाली स्क्रिप्ट का, तो भी पोजीशन के हिसाब से ही वो स्टॉक चलता है। हाँ, यानी खराब रिजल्ट में भी वो ऊपर जाएगा एंड नहीं, अच्छे रिजल्ट में जरूरी वो नहीं डाउन भी है। हो सकता है। कितना स्टॉक निफ्टी में से निकल गया है? 25-30 स्टॉक। नहीं मैं परसेंटेज वाइज कह रहा था सर। अगर मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है जैसे लार्ज कैश वगैरह में, तो अरे ऑलमोस्ट। यार, ये कोई ज्योमेट्री वो थोड़ी है कि आप कैलकुलेट कर सकते जी हो। जी। ये थोड़ी प्योर मैथमेटिक्स है यार, तुक्का है ये तो। चल गया चल गया। चलिए, थैंक यू। बीओटी। बोट बोट बोलो भाई। राधे राधे शरद जी। हम्म। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। किसी अरे टॉपिक, ये आपने जो खेल खत्म आज चालू किया है, ये क्या मार्केट रिगार्डिंग, क्या नेगेटिविटी देख रहे हैं या पॉजिटिविटी, किस तरीके से? और क्या पर्टिकुलर किसी पार्टिसिपेंट का खेल खत्म या मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? यार, ये सवाल बहुत कठिन है। लिखने को तो लिख दिया, बट आई डोंट नो, आपको जो समझना है समझ लीजिए। अच्छा ऐसा? नहीं तो फिर उसी हिसाब से कि यही डिस्कशन करते हैं ना, इसलिए। नहीं, जरूरी नहीं है कि व्हाट यू वांट टू डिस्कस। मतलब जैसे अगर मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं तो उस चीज का रिगार्डिंग, या आने नहीं, वाले समय में क्या?
उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले समय में क्या होने वाला है वो तो आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। नहीं मतलब एक जस्ट एक अनुमान तो लगाया जा सकता है, प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता 100% करेक्ट, जस्ट एक गेस वर्क कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा। उसका क्या मतलब निकलता है? तो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं उसको। ओह लवली। नहीं देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का बात करना अलाउड नहीं है। अच्छा, सिर्फ स्टॉक्स के बारे में। यस, वो भी ओके, तो वो भी एफएनओ के स्टॉक्स और कोई नहीं। एफएनओ जैसे रिलायंस और एचडीएफसी। कुछ भी कुछ भी कुछ भी। हाँ, तो रिलायंस और एचडीएफसी दोनों के लिए मेरा व्यू जो है वो अपसाइड के लिए ही है अभी के लिए। हम्म, हम्म। ठीक है। बाकी रिलायंस के लिए और एचडीएफसी के मैं टारगेट जो मैंने किए थे कैलकुलेट कर रखे हैं, हम्म, वो मैं शेयर कर देता हूँ एक बार। हम्म, हम्म, रिलायंस का अगर 2440 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, हम्म, तो 2502 और 2580 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में। हम्म, और सेम फॉर एचडीएफसी बैंक अगर कहेंगे, बस 2440 तो और 40 पॉइंट ऊपर है ना भाई हाँ क्लोजिंग मैं से। वही कह रहा हूँ 2400 से 2440 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, रेंज बाउंड है। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ मैं वही चीज कह रहा हूँ कि 2400 से 2440 की एक रेंज रहेगी रेजिस्टेंस की। तो अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो 2503 और 2580 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये चीज है। बाकी रिलायंस पूरी की गई थी, जो रिट्रेसमेंट उसको करनी थी वो करके गया है। तो ऐसा कोई नीचे के डाउन साइड के टारगेट्स किए गए थे मेरे हिसाब से पेंडिंग नहीं है। ठीक है। बाकी एचडीएफसी बैंक की अगर बात करेंगे तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा क्यों नहीं करते हो? मेरा मर्जी ना। नहीं जस्ट मैं गई थे आस्किंग। नहीं नहीं, मेरा मर्जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि फालतू लोग उसमें खेलते हैं। हाँ होशियार लोग स्टॉक में खेलते हैं। ओके, तो 1540 और 1590 तक के टारगेट्स हैं, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मे बी पॉसिबल न्यू ऑल टाइम हाई मारेगा एचडीएफसी। हम्म, ये दो ही है मेरी एनालिसिस, क्योंकि मेन ड्राइविंग फैक्टर्स मार्केट के यही हैं दो स्टॉक्स, एचडीएफसी एंड रिलायंस, इसलिए। good। बाकी टीसीएस के लिए जो एनालिसिस है वो ये है कि टीसीएस अगर 3548 के ऊपर सस्टेन करता है तो टीसीएस में जो गैप फिलिंग के टारगेट्स हैं अप टू 3605 वहां तक देखने को मिल सकते हैं। तो आज तो 3457 बन रहा है। नहीं वो मैं मान लिया, बट ये कहते हैं जो रेजिस्टेंस था वहां से ये कहते रिवर्स हुई है, और नीचे एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पर 3407 से 3433 के बीच में। अगर ये सस्टेन कर गया तो टीसीएस वापस से ये कहते हैं अपसाइड के ये लिए एक कितने रैली दिखा साल सकता से है। आप बाजार में हो भाई? क्या चीज? आप कितने साल से बाजार में हो? मैं 1.5 साल से। चलिए, हम्म। थैंक यू। ओके। मोनिल भाई। Good evening, Sharat sir. Good evening, Saman bhai. Sir, my question was with respect to US focused pharma company, US generic focused pharma companies. So, what's your view on that? Like, do we see them as a next leader of the current bull market? Yes and no. Yes and no. Sir, did not get you. Like, what exactly you wanted to? यार, it depends on how you take it. जेनरिक का क्या वैल्यू है तू बताना मेरे को। in larger scheme of things, जेनरिक का क्या वैल्यू है? जॉब वर्क का है वो तो।
But sir, if you look, there are some $260 billion of patented drugs which are going to be expiring in next 1 or 2 years. So, does it present a good opportunity? And the pricing pressure in the US, as they are saying that market is having a buzz, like that is right now not there because of the high interest rate in the US. हाँ, अभी वो डॉक्टर रेड्डी और वो सब का आया था रेवलीमेड या समथिंग, क्या हुआ? कुछ सेल तो हुआ नहीं। अब पेपर पे अच्छा है। Got your point. Got your point. हम्म, Okay. Because if you look, all these companies last 10 year CAGR is very low single digit. So that's why I was asking. Like, उसमें मोनी भाई आपको क्या अच्छा लगता है? I like, मतलब मेरे को ये ग्लेनमार्क, I think it is good play. छोड़ो यार। I think your analysis is absolutely wrong. Anyway, Enlighten me if I नहीं may ask. नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन एक चीज मालूम है, ऐसे में भी वो क्या बोलते हैं, वो लॉस दिखाता है, क्या मतलब है यार ऐसा कंपनी में। एनीवे, वो छोड़िए, मैं तो एबॉट वाला हूँ। Okay, sir. Sure. Okay. Thank you. एबोट और पीजीएचएल वाले हैं हम। Okay. Sure. Got your point, sir. Thank you so much. हाँ, सीए कपिल चौधरी जी, बोलिए। रोहित भाई, आई हैव सेंड यू अ रिक्वेस्ट। शरद भाई, आई हैव सेंड यू अ रिक्वेस्ट। शरद भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। बॉट भाई को भी सुना अभी, अच्छा लगा, बहुत सारा व्यू मिला मार्केट पे, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे हैं इस स्पेस पे। शरद भाई, आपका 2 मिनट का वीकली एनालिसिस या बोलो, आप जो भी बोलो, आपका मार्केट पे कमेंट्री हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो मिल जाए तो हम लोग उसमें से बहुत कुछ वी कैन नहीं, मेक आउट। जैसे मैंने बताया, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है। नहीं, आपका आज कमेंट्री नहीं आया है शरद सर। कमेंट्री, लेकिन क्या कमेंट्री दूं, कुछ है ही नहीं यार। नहीं सर, आपने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, कौन कौन से स्टॉक अननेसेसरी ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। आई मीन, आई एम नॉट नेमिंग देम। नहीं, इफ यू कुछ नेम तो देम आल्सो। 2 मिनट, मैंने 5 मिनट का कमेंट्री नहीं बोला सर, 2 मिनट का कमेंट्री, उसमें से वी मेक आउट लार्ज आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस सर, 2 मिनट की कमेंट्री में। अब बाद में देता हूँ, पहले रोहित भाई, अनंत भाई, किरीट मनराल, वो सबको सुन लेते हैं। तो ओके सर, आई विल कम बैक अगेन। या थैंक यू सर। रोहित भाई। Yeah, long time. Markets have been tricky, have become tricky. अभी लास्ट 5 दिन से कंटिन्यूस वॉल्यूम, हर दिन वॉल्यूम पिछले दिन से कम है कंटिन्यूसली। नॉट नो गुड साइंस। सिर्फ ये कहीं पे स्मॉल मिड कैप हर दिन इंडेक्स जो है, स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स हर दिन ऊपर रहता है। निफ्टी, बैंकिंग, पीएसयू सब तो फ्लैट हो गए। Looks like the momentum is dying, but still waiting for a clear sign for the downward move to happen. Globally also, it's become very tricky. The divergence between the fundamentals and technicals is very, very high. Specifically, of course, we all look at US only. And how that will resolve itself is now it is a critical time to watch. First 6-8 months of this year, there was a lot of liquidity created that helped the markets recover from Jan to
September. Now RBI is also tightening liquidity. They are not easing despite whatever data points may be there, which is, and because you have consistent FII selling, couple of things people are not watching are it is keeping the currency on the edge. वो 83 के आसपास ही रगड़ रहा है. At some point it breaks past that, it will be a big move to the upside. 87, 85, 87 is the initial what you will think of. Eventually maybe even 90. So yeah, all these things are developing over time. But at some point of time everything comes to a head. So I think now is the time to really back off and watch all of that play out. The time to take risks was probably first 6-8 months of this year. Now is not a time to take any risk in this market at this level. That is what I am thinking. Not to be too precise on the exact timing ki aaj hai ki kal, but of course it looks like you already lost momentum. Some people have this seasonal thing ki nahi December, nahi January tak rukega, but I feel possibly India has already peaked ahead of other markets in September. US should be almost done in terms of this rise, but we give it some time. But let's look at our own market now on trying to, because what happens when major tops and bottoms are formed, there is always a divergence between markets, and that divergence confuses us. So we should not look at now other markets to find a clue. We should look at our own market and look for clues of the trend. उधर क्या हो रहा है उसको जाने दो, इधर जो हो रहा है उस पे ध्यान दो, तो then you will be clear and get a picture. In our place, like I said, currency is knocking on the doors of 83. It's a big pending problem of ours that we don't have enough fund flows to really balance our deficit. And we are completely dependent on FII money to balance our currency account. So yeah, that. I can interrupt you a moment. Bilkul. I have done speaking. No, you are not done. About the currency thing. Yeah. 2-3 months ago, the finance ministry imposed a TCS of 20% tax. Now, this is introduced in smaller countries like Nigeria and all that, where the foreign reserves are precarious. So, am I right to assume that with this falling rupee, which is controlled every day by RBI, today I think it closed at 83.37. Yeah. Suppose if it goes past 84 or whatever, Yes. what will happen of the equity market? And today the Nifty volume was 31 lakhs. Yeah, lowest. नहीं बीच में 28 लाख हुआ था. But I can't figure out 325 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें ये वॉल्यूम है, कैसा चलेगा? Yeah. So this is actually a pattern reversal. तो typically जो technical में बोलते हैं कि भाव के साथ volume चलता है, तो price goes up, volume should go up. This rally which we have seen from 18,800 to 17,800, 19,800, the opposite has happened. The volume is falling on the way up, and that is a sign of change in trend and pattern. कि जो पहले वॉल्यूम हो रहा था अब थोड़ा बहुत हो रहा था, अब तो बिल्कुल ही इस बार तो बिल्कुल ही घट गया. इट इज लाइक नॉन एग्जिस्टेंट. So and people talking कि हम लोग का 4.25 ट्रिलियन का वॉल्यूम है, इतना हॉगवॉश है वो स्टेटमेंट. Probably they are adding up. वो ऑप्शन और फ्यूचर को ऐड करके बोलते हैं. कैश मार्केट में हालत खराब है. ऑप्शन में क्या करते हैं कि 20,000 का कॉल है, तो 20,000
प्लस प्रीमियम वो करते हैं। वो सस्ते में आउट ऑफ द मनी कॉल का भी आप वॉल्यूम कर दो तो वॉल्यूम हो जाएगा। आई नो, तो दैट इज नॉट रेलिवेंट। नहीं, अगर 31 लाख निफ्टी का वॉल्यूम है, आई थिंक इट्स द मोस्ट पैथेटिक वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। और एक बात समझाओ रोहित भाई, रोज रात को सोने के पहले सोचता हूँ कि अगर रोहित भाई को बेचना है माल, तो वो किसको बेचेगा और वेयर, हाउ यू विल गेट एन एग्जिट। ये जो वॉल्यूम जो भी हो रहा है वो भी तो मतलब डुप्लीकेट है ना, फोर्ज्ड, रियल वॉल्यूम थोड़ी है। मैं 2 लॉट लेने को डालता हूँ या बेचने को डालता हूँ, 5-5 मिनट तक तो सौदा नहीं होता है, मतलब एट द नहीं, मनी। ये इसमें ये algos, I don't know how they have allowed it or what is the functionality in India that these algos play such a big role। आपको जो भाव स्क्रीन पे दिखता है उस पे सौदा होता ही नहीं है। So this is, ऐसा नहीं होता था 2004-5। I know if I could see a rate I could execute। हेलो, आज बटन दब गया था, सॉरी। अब बोलिए रोहित भाई। रोहित भाई बोल। आप म्यूट हो सर। अब कौन म्यूट है? नहीं, रोहित सर। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ, यस बराबर। यस। अच्छा, वो पता नहीं म्यूट कैसे हो गया। नहीं, तो मैंने। नहीं, अच्छा। हाँ, बोलिए ना। तो मैंने, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि पहले क्या होता था, 2004 तक तो यू कुड एक्चुअली जो भाव दिखता था स्क्रीन पे उस पे एग्जीक्यूट हो जाता था। अब जो भाव दिखता है उस पे एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, तो जो डालो भाव चेंज हो जाता है। सो दिस ऑल दीज कंप्यूटर्स विच हैव बीन अलाउड, एंड बीच में इसने इस पे पलक ने भी एक बार ये एनएससीएल इसका जो what they have given direct access on lease lines to various brokers for running algos, they were actually front running the trades based on the quotes। तो उनको quotes पहले मिलता है और उनके जो कंप्यूटर algorithms है they are putting the quotes before us। तो that is causing this issue is what I understand कि आप जो सौदा डालते हो उसके आगे पीछे भाव पहले ही हिल जाता है, मतलब आपका सौदा पहुंचने के पहले भाव चेंज हो जाता है। ये बहुत ही अनयूजुअल है। इसको somehow has to be investigated and changed। It should not happen। The price on the screen has to be ultimate। So this phenomena has been allowed somehow। क्या क्या रोहित भाई चेंज करोगे? बहुत कुछ है चेंज करने को, बहुत सारा। अगर आपने गलती से मेरे स्पेस में एक आपने एडवाइस दे दिया गलती से स्टॉक का, तो आपको लेटर आ जाएगा सेबी से। ओके। और अगर आपने कोई कंपनी है आप और 13-15 हजार करोड़ का घपला किया, कुछ नहीं होगा। तो ये सब is the most stupidest, loosely run market where there are rules only for small players. For big players, there are no rules. मैं ये बोलता हूँ, if I am buying a share, XYZ, and you are selling, why I should not know that you are selling? काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, ठीक है, but टेफेनो में वर्ल्ड ओवर एवरी इवनिंग यू गेट द डिटेल्स, किसने बेचा किसने लिया। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सो आवर मार्केट इज वेरी ओपेक एंड इट अल्टीमेटली द मार्केट विल सफर। ये जो रोज रोज का एक्सपायरी है, यू नो व्हाट विल हैपन, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी विल बिकम अ जंकी। वो 1-1 रुपये वाला एक ऑप्शन लेगा,
आदत नहीं जाएगी और बर्बाद हो जाएगी. Yeah. Somebody has to take it up यार. छोड़ो, जाने दो. ये आनंद भाई को लगता है 20,000 500 होगा, तो उसको क्या बोले अपने. But that's not anymore a very big target. For me, if I have to be bullish as an investor, if I cannot say the market is going to 30,000 or 40,000, तो किस नाम का तेजी है? वो 500 पॉइंट तो ठीक है, होएगा नहीं होएगा फाइन ट्यून करने वाली बात है. बीच में ऐसा एक सेटअप था जो मुझे भी लग रहा था, बट द वे व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, द वॉल्यूम एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड, आई विल नॉट पुट माय मनी ऑन इट गोइंग टू 20,500. हो गया तो कुछ अजूबा है, बट इट कैन नॉट बी बेट अपॉन लुकिंग एट द स्ट्रक्चर. आनंद, नॉट वर्थ. आनंद, why don't you come? खाना खा रहा है क्या? वही होगा सर, वही होगा, खाना ही खा रहे हैं. और रोहित भाई, और कुछ ये हमारे क्या बोलते हैं लिसनर्स को कुछ बोलेंगे? वर्ड ऑफ कॉशन. Listeners, my simple this is this. I mean, I at least for some time of early of this year, मतलब मैं शुरू start of this year, I was somewhat bullish, but that I have given up. I think it's time to create cash, be out of the market for some time, and wait for things to really clear up. Right now, there is no clarity on what is going to happen next. सबका गैस वर्क चल रहा है. फेड ये करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, वो होगा. ये सब लोग गैस वर्क कर रहे हैं. सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. क्लैरिटी नहीं है अभी. एंड एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन वन फैक्टर, दैट इज द सो फार right now ki why things are still holding up is government spending. Private sector is not benefiting from government spending. Government spending is going to certain sectors only and benefiting those certain sectors, but it is not benefiting private sector across the board. This is the tricky part. So your whole this is कि government खर्चा करेगा तो growth हो जाएगा. Now in India, to some extent, earlier pre-COVID, at least our debt to GDP at the government level was 65%. Now it has already increased to 90-95%. So the room is not a lot for us to keep spending. US is though at another out of control level. They have no room to spend what they are spending. So you're only depending on one factor, और कोई factor नहीं है. रोहित भाई, I'll draw your attention this Dow Nasdaq. Whatever they are, it's only because of Amazon, Microsoft, and Apple. Yeah. But they're calling it the 7 stocks actually. They're saying 7 stocks are driving the entire move. That is also true. So The people mimicking have that index and buying over here NTPC doesn't make sense here. And okay, another point. How come you rig up NTPC to this level? For what joy, यार? Utility company क्या कर लोगे आप? Sure. वो तो ऐसा है कि see actually how I think what happened is when interest rates went up na, ideally there should be a valuation correction when interest rates go up. So where does the money go? It goes into where valuation is low. Now the only sector in India where valuation was low was PSU stocks. So somewhere money has gone into PSU stocks. But what has not happened is the valuation correction of the other sectors never happened only. This is the funny part. जो होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, वैल्यूएशन करेक्शन होता है, फिर पैसा कहीं और जाता है. वो वैल्यूएशन करेक्शन पूरा हुआ नहीं है और पैसा इधर चला गया है. बराबर. So that valuation correction because of high interest rates is still due and not happening because of some perception being created कि नहीं ये interest rate यहाँ थोड़ी रहेगा, नीचे आ जाएगा. Another part is this assembly election. We will not opine who will win or lose.
but the exit poll is on the 30th, and 30th is the expiry. So I don't know how many people have the balls to carry forward their position. There will be a churn. और बताइए इसलिए हाँ नहीं, इसलिए तो जैसे आपने बोला ना कैरी फॉरवर्ड, अब कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर्स तो मैं इसलिए छूता ही नहीं हूँ कि वो ओवरनाइट रिस्क तो लेना ही नहीं है. ऑप्शंस इज द ओनली वे आई एवर टेक एनी ट्रेडिंग रिस्क. बाकी इन्वेस्टमेंट्स इज अ टाइमली थिंग, इज अ टाइमिंग थिंग कि जब ठीक लगता है ठीक है. नाउ इज अ टाइम टू बैकअप. आ जाओ घर पे, आ जाओ नेक्स्ट वीक. Yeah. Okay. That Yeah, bot. What do you want to say? BOT अनम्यूट कीजिए सर माइक. जपाटा बोलिए भाई. बोलो. हेलो. हाय. एक मिनट प्रदीप हाय भाई. गोल्डन भाई. हाँ जपाटा जी बोलिए. ओके. हाँ, हाय गोल्डन भाई, क्या हाल चाल है शरद भाई? फाइन सर, पूछिए सर क्या पूछना था. ओके ओके, मेरा क्या दो क्वेश्चन था आपसे. पहला तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं बहुत सारे स्पेसेस में, मतलब ये इससे रिलेटेड स्टॉक मार्केट स्पेसेस में लोग बोलते रहते हैं कि प्राइस सस्टेन करेगा तो ऐसा करने का वैसा करने का. ये सस्टेन करने का मतलब क्या रहता है? और दूसरा, मुझे एक स्क्रिप्ट के बारे में पूछना था, लेकिन क्या वो सिंगल डिजिट वाला स्क्रिप्ट है? अगर आपकी अनुमति होगी तो ही मैं नहीं पूछूंगा. नहीं, वो छोड़ दो, वो मत पूछो. स्क्रिप्ट के बारे में मत पूछो. ओके, तो फिर ये सस्टेन करने का क्या मतलब होता है? जब ये लोग बोलते हैं कि प्राइस इधर सस्टेन करेगा तो ऐसा करने का, सस्टेन का मतलब क्या रहता है? अटकेगा उधर, ठहरेगा तो बढ़ेगा घटेगा. मतलब कि अभी कितने कोई टाइम पीरियड रहता है सस्टेन करेगा? ये क्या मतलब कैसा युवा है? मतलब क्लैरिटी नहीं है इसमें, बस खाली यही पूछना था. अरे और ज्यादा कुछ नहीं. समझने का नहीं यार, समझेगा पैसा लग जाएगा. सुनने का, मजाक करने का, चले जाने का. ठीक है, थैंक यू शरद भाई. उसमें टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है जपाटा पे. व्हाट मैं टाइम मतलब फ्रेम ऐसा द किसी पे पर्सन. पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अभी आके बात कर रहा था किसी स्क्रिप्ट के बारे में कि ये प्राइस के ऊपर सस्टेन करेगा, तो मतलब 15 मिनट सस्टेन करेगा, महीना सस्टेन करेगा, साल सस्टेन करेगा, नहीं, वो क्या तो मतलब? उसको उसी टाइम पे पूछना पड़ेगा आपको. जो बोल रहा है उसको ही पूछना पड़ेगा. सस्टेन करेगा कौन से लेवल पे, कौन से टाइम फ्रेम में, वो तो उनको ही पता होगा जो बोल रहा है भाई. हाउ वुड वी नो. अरे जपाटा अच्छा, मतलब भाई, ऐसा कोई अरे फिक्स अरे डेफिनेशन जपाटा नहीं है भाई, कि मतलब ऐसा ही है? अरे जपाटा नहीं नहीं. भाई, आप तो होशियार हो, छोड़ो ना ये बात को यार, जाने दो. अरे यार, इग्नोर मारो, क्या मतलब? इग्नोर मारो, इग्नोर मारो. दिल ओके, बड़ा थैंक यू. रखो, दिल बड़ा रखो. चलिए, एक प्रदीप भाई बोलिए. प्रदीप भाई बोलिए. हाँ जी, हेलो सबको. ये मार्केट का तो देख ही रहे हैं, खैर कुछ भी नहीं पता लग रहा कभी कहाँ जा रहा है, कभी कैसे कर रहा है बिहेव. एक ये इसका टीसीएस का बायबैक का कुछ आया है, और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो कुछ और ही दिखा रहा है. वो कुछ लिंक ही नहीं हो रहा उसके साथ, कुछ इसका बायबैक का और मार्केट में जो रेट है उसका टीसीएस में. ये क्या इसका मार्केट, मतलब है? टीसीएस का मार्केट कैप है ना 11-12 लाख करोड़ है, और बायबैक है 17,000 करोड़ का. हम्म. तो कहाँ से 1-1.5% हुआ? तो 1-1.5% विल नॉट मूव द प्राइस ऑफ द शेयर. यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, वो तो
हाँ, आपकी बात सही है, पर फिर वो जो रेट रखा है उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं है होगा, उससे कोई लिंक नहीं क्रिएट करेगा मार्केट में। या वो सब पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए है। अच्छा, ठीक ठीक है। ओके। हेलो। हाँ जी दीपक जी बोलिए। दीपक जी बोलिए। हाँ, थैंक यू शरद भाई, रोहित भाई, सबको नमस्कार। तो मेरा क्वेश्चन था, एक तो ये अगर आपने आईपीओ का ये डेटा डिटेल्स देखा है तो 2.5 लाख करोड़ तक का बिड्स आई है। इतना कैश मतलब पब्लिक या इंस्टीट्यूशंस के पास है जो 4-5 हजार करोड़ के शेयर लेने को भागे जा रहे हैं। तो जो अगर मार्केट गिरने की बात कर रहे हैं उसका मैं भी काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, और प्लस अभी 17-18-20 हजार करोड़ की एसआईपी आ रही है, वो बंद होती दिख नहीं रही है। और प्लस आपका एफआईआई का जो होल्डिंग है वो कई सालों के लोएस्ट लेवल पे है। तो इन सब डेटा को देखते हुए, लिक्विडिटी को देखते हुए, हाउ डू यू सी मार्केट फॉलिंग? मतलब उसके लिए लिक्विडिटी क्रंच होना चाहिए, कोई पैसों की कमी होनी चाहिए, या कोई बेचे या खरीदने वाला नहीं होना चाहिए? तो इस सिचुएशन को, और जो हम बात कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, तो हम कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं? रोहित जी, शरद जी। नहीं, अगर आपको मालूम होगा मार्केट कैप कितना है इंडिया Well, liquidity is a very big topic. In US, the way it has been measured in the last 10 years is by looking at the reserve assets. और इस साल में उन्होंने रिजर्व एसेट्स के साथ साथ लोगों ने रिवर्स रेपो अकाउंट, समथिंग नोन एज द टीजीए ट्रेजरी जनरल अकाउंट, ये सबको ऐड करके लिक्विडिटी इंडिकेटर्स बना लिए। अब यूएस में क्या है कि इतना डेटा मिलता है, उस इंडिकेटर को देख के लोग सोचते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, और उस हिसाब से बाजार पे क्या असर होगा। अब इंडिया में अब उस तरह का तो इंडिकेटर नहीं बता सकता हूँ, बट कुछ चीजें अगर आप ध्यान देंगे, आरबीआई क्या कर रही है। आरबीआई ने लिक्विडिटी को टाइट ही रखा है। जो उसने प्री कोविड लिक्विडिटी डाली थी बाजार में, पिछले आप 4 उसकी मीटिंग्स को सुन लीजिए, उसमें हर बार दे आर टाइटनिंग लिक्विडिटी। जितना उन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट किया था, हर बार 1 लाख करोड़ रुपए कम कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए कम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम की इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है, उसको भी घटा नहीं रहे। इवन दो सीपीआई इन्फ्लेशन कम हो गया, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 6 महीने से नेगेटिव चल रहा है। ओके, तो जब नेगेटिव डब्ल्यूपीआई चल रहा है तो इसका मतलब है कि जो होलसेल प्राइसेस है वो बढ़ नहीं पा रहे। दिस इज ओनली कंज्यूमर इन्फ्लेशन हैपनिंग, जो कि कंपनीज में का डिफरेंस है, मतलब इनपुट और आउटपुट कॉस्ट का डिफरेंस बढ़ रहा है, बट इनपुट कॉस्ट के भाव नहीं बढ़ रहा, मतलब दोस प्राइसेस आर नॉट गोइंग अप। तो लिक्विडिटी कंडीशन सॉर्ट ऑफ टाइट ही हो रही हैं आरबीआई की तरफ से। दैट डजंट मीन कि किसी का आईपीओ आएगा तो ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा। People are saving, people get salary every month, they are doing SIP every month. That is a change in culture, कि कल्चरली भारत में इक्विटी का जो प्रभाव है वो बढ़ गया है, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जो आजकल जो यंग लड़के हैं, जैसे उनको जॉब लगती है, मैं जितना जानता हूँ, जॉब लगते ही वो लोग ये ढूंढते कि मैं इक्विटी में सेविंग्स करूं या इसमें सेविंग्स करूं, किसी म्यूचुअल फंड को ले लूं। ये चीज पहले नहीं थी। 10-15 साल पहले लोग पहले सोचते थे कि अपने खर्चे देख ले, घर देख ले, संभाल लें। अब वो टेंशन सॉर्ट ऑफ दिख नहीं रही है करंट जनरेशन में। उनको सीधा अर्न करने के बाद इन्वेस्ट करना है। तो ये दिस हैज रिजल्टेड इन लॉट ऑफ एसआईपी फ्लो, बट सो दैट इज क्रिएटिंग योर डिमांड फॉर इन ऑन वन साइड, बट ओवरऑल लिक्विडिटी इज नॉट वेरी वेरी एक्सपेंशनरी, पहले जितना जैसा नहीं है, थोड़ा टाइट है। नहीं, तो आपको लगता है कि अगर, बिकॉज अभी जैसे आपने कहा इक्विटी कल्ट इतना हो गया है, हम्म, यहाँ पे ऐसे ज्यादा है, they might come back into large stocks. So even हम्म। if the correction comes, there might be a case, it might be shallow and fast. So it might not last long for say 24 महीना 36 महीना. It might go down and then just again come back because the demand is so high. उसका एक सिनेरियो बनता है?
तो as a market analyst, what I would do now, I would look at what is happening rather than ki what can happen, because what can happen opens up everything is possible. But what is happening? Why if जैसे आप बोल रहे हो इतना पैसा आ रहा है लार्ज कैप पे जा सकता है, तो क्यों नहीं जा रहा है? मैं ये उल्टा सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि जा क्यों नहीं रहा है। आखिरकार ये पैसा कोई तो लगा रहा है ना, फंड मैनेजर्स जो बैठे हुए हैं म्यूचुअल फंड के, पैसा तो वही लगा रहे हैं, तो वो लार्ज कैप क्यों नहीं खरीद रहे हैं? मिड एंड स्मॉल कैप में क्यों खरीद रहे हैं? ये सवाल आपने पूछा अपने आप से कभी? नहीं, जबकि उसका तो वैल्यूएशन उनका ज्यादा मुझे है, मिड एंड स्मॉल कैप की कंपनियों के, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों के वैल्यूएशन 90p 70p 60 ऐसे पहुंच गए। हाँ, अच्छा, रिलायंस का पी आज कितना है? 25 या 30 के बीच में है। ओके, हिस्टोरिकल कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप उसका 20 साल का पी रेशियो निकाल लो, दिस इज अबव एवरेज। मतलब किसी सिक्लिकल कंपनी का जो कि तेल और ये सब बिजनेसेस में है, उसका पी रेशियो डबल डिजिट्स, इतने हाई डबल डिजिट्स में कभी नहीं आता है। टिपिकल हिस्ट्री है 10 15 तो पीक हो जाता है, अब 20 तक भी खींच लो, और ये टॉप पे तो 40 टाइम्स तक हो गया था पोस्ट कोविड में। तो ऐसे ऐसे पी रेशियोज हमने देख लिए, तो हमारे क्या हो गया, हम लोग को एक उससे ये हो गया है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल मानने लगे इसको हम लोग। और नॉर्मल इसलिए मानने लगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट के दर इतने कम हो गए थे, नॉट इन इंडिया ओनली बट अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड जब इंटरेस्ट रेट जीरो की तरफ आ जाते हैं तो वैल्यूएशन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। तो ऐसा ऐसा समय हमने देखा है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और वैल्यूएशन आर हाई। तो दिस इज द रीजन आई थिंक दैट पीपल आर नॉट बाइंग, यू नो, मनी इज नॉट गोइंग इन सम प्लेसेस। तो अगेन कमिंग बैक टू, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने कट ऑफ कर दिया कि दिस क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड कि अगर लार्ज कैप खरीद सकते तो खरीद क्यों नहीं रहे? नहीं, हाँ, तो मैं उसका कह रहा था कि अगर डोमेस्टिक नहीं भी खरीद रहा है कर रहा है, तो एफआईआई के पास है ही सिर्फ लार्ज स्टॉक्स, उनकी वहां पे होल्डिंग्स भी कम हो रही हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं कि स्टोरिफिकेशन इज दिस, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर रेट्स कम होंगे, तो हो सकता है एफआईआई का पैसा इंडिया में आए, तो वहां से फिर और बाकी लार्ज स्टॉक्स में बाइंग आ सकती है। आई मीन दिस इज द स्टोरी व्हिच इज बीइंग सेड द अदर साइड ऑफ द टेबल। सो दैट इज व्हाट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन माइंड्स लाइक अस। इसलिए हम आप लोगों के पास आते हैं पूछने के लिए कि ये दोनों साइड की स्टोरी दिखती है, और जब खरीदते नहीं है, जब वो आपने देखा ही है पिछले 3-4 महीनों में तो कितना स्मॉल कैप मिड कैप में बवाल हो गया है, और फिर अभी अगेन द प्राइसेस आर अगेन स्टेइंग एट द अपर एंड। सो इफ दे आर कंसोलिडेटिंग एट द अपर एंड, देयर आर चांसेस दैट इट माइट ब्रेक आउट ऑन द हायर साइड। तो अभी आपने कहा 20,500 600 700 जा सकता है, which I agree, but again you do not get the confidence of going it say 50 60 70% higher for a major allocation to be done. तो मैं आपको एक और चीज विचार करने के लिए बताता हूँ, और ये डेटा आपको, अब see I have a platform where all the data is there, so data has to become democratic ना। लोगों के पास डेटा नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। I have a platform called Strike, आप, मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। एफआईआई का आप 10 साल का एनुअल डेटा देख लो, शायद मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट डालने को तो दिया मेरी टीम को आज, या नहीं तो कल आप वो शायद उस पे भी आ जाए, आई थिंक इट्स ऑन माय वीडियो। तो ये डेटा क्या है कि आप 10 साल का एफआईआई का एनुअल डेटा देखिए, 2019 और 20, ये 2 ही साल हैं जिसमें पॉजिटिव इनफ्लो है एफआईआई का। उसके अलावा 7 साल एफआईआई का आउटफ्लो है। मतलब 2015 16 17 18 21 22 23, ओके, 7 years out of the last so many years there is outflow from India। ये 7 years ऐसे नहीं थे जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा था। तो हम लोग जब ये आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि आज इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो 2 साल पहले कहाँ गए थे लोग? नहीं, तो रोहित उसका फिर आर्गुमेंट ये हो So सकता है that is not the only, my point is that is not the only reason. They are selling India consistently since 2016.
So my point is, at what time would the camel's back would be broken? मतलब वो बेचे जा रहे Which हैं, हमारे camel? यहाँ खरीदे जा रहे हैं, हाँ रिटेल खरीद रहा है, हाँ, एफआई तो ये यही तो बाजार की यही तो बाजार की ब्यूटी डीआईआई है कि खरीद ये रहा है, इस समय तक पेंशन फंड बाजार की ब्यूटी, हाँ, बाजार की। खरीद रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। दीपक भाई आपकी आवाज कट रही है। सी आपकी आवाज कट रही है, बट मैं जितना समझा ना, सी आप सोच रहे हो कि रिटेल, व्हेन नहीं विल द रिटेल बैक ब्रेक, बट द ब्यूटी ऑफ मार्केट। हाँ, आपकी आवाज अभी भी आ नहीं रही है नहीं मेरे नहीं, बोलिए पास। बोलिए, आई डोंट आप नो बोलना, इफ, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, नाउ आई कैन हियर यू, व्हाट वर यू सेइंग? तो आई वाज सेइंग कि एफआईआई बेचे जा रहे हैं, रिटेल खरीद रहा है, डीआईआई खरीद रहा है, पेंशन फंड्स पूरा बैकअप है। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि पहले कुछ मार्केट में मेजर करेक्शन आए, तो ये दोनों पोजीशन में रिकंसाइल नहीं होती। एक तरह हम भी चाहते हैं कि आपको भी पता चले पैसा नहीं आ रहा, बट वे कर के, और ये फिर बात रिकंसाइल नहीं होती है कि व्हेन वुड द कैमल्स बैक वुड बी ब्रोकन, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, कब वो नानी खैर बनाएगी, कब तक। अब भाई साहब अभी मैं बात करता सो हूँ। इसमें ऐसा होता है ना कि मार्केट ensures that everybody becomes complacent. सब लोग बिलीव करने लग जाते हैं कि यही सत्य है, कि कुछ नहीं हो सकता. So what you initially think is the problem, you start thinking that that is not the problem. So when complacency becomes the reality, that time it happens. तो वो तरह की अभी हम लोग ये बिलीव करने लगे ना कि हमारे पास तो इतना पैसा है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता. जब मैं और अभी शरद जी कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि हमारा करेंसी का कितना बड़ा प्रॉब्लम है. दो रुपए नहीं है हमारे पास, $2 नहीं है. आप ये समझो, अगर एफआईआई भारत में पैसा नहीं लाता है ना, तो हमारे पास 1 साल से ज्यादा के लिए डॉलर नहीं है. तो ये बहुत बड़ा संकट है. इसका इसका सोल्यूशन बनते हैं. अभी सोल्यूशन आप ये बनाओ कि आप रशिया से तेल रुपया में खरीदोगे, तो ठीक है, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सोल्यूशन है. इस तरह के सोल्यूशन है कि आपका रुपया सब जगह इस्तेमाल होने लग जाए, या दूसरी करेंसी कुछ ब्लॉक्स बन जाए. दीज आर द माइक्रो सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम. अदरवाइज वी आर नेट इंपोर्टर्स. ओके, वी डोंट इवन अट्रैक्ट इनफ एफडीआई. अभी ठीक है, अभी कुछ चीजें हुई हैं कि चलो एप्पल ने प्लांट लगा लिया, टेस्ला बोल रहे हैं हम भी आएंगे. These are things which are starting to happen now, but they have not yet happened in a big enough way for us to say that we have achieved success on the currency front, where we are no more dependent on portfolio flows. So far we have been too dependent on portfolio flows as the only source of currency, and that is the problem. मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर. आ रही है सर, बताइए। दीपक भाई, आपका बात सुना, आपको लगता है कि बाजार यहाँ से 60-70% So ऊपर जा नहीं, मैंने सकता है? काफी कुछ बताया. I don't know if it went through, तो ठीक है. नहीं, यू कैन हियर मी रोहित? और समझ यू सर कैन हियर? आप आप दोनों एक दूसरे को नहीं सुन सकते, नहीं, बट आई मैं कैन आप हियर दोनों को. रोहित. या ओके. तो रोहित सर, if you are able to hear me, you can log out and log in again because your voice is not audible to Sharad sir. नो, इट्स ओके, इट्स ओके. दीपक भाई, आप बोलते हो 60-70% ऊपर जाएगा. आप बोलते हो कि एफआईआई बेचेगा, वापस लेगा, ये हो. अभी एफआईआई जो है, उनके पास में पूरा टूल्स होता है, पूरा रिसर्च होता है. व्हाट इज एक्सपेंसिव एंड व्हाट इज चीप, दे आर अवेयर. तो आप, वो लोग तो 20 के ऊपर पी में सब बेच देंगे. और आपसे एक बात पूछना है, अकॉर्डिंग टू यू, आप इतना पूछ रहे हो, व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ इंडिया मार्केट? हाँ दीपक भाई.
सर 4 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी है आसपास, मेरे हिसाब से जो डेटा देखा था शायद 4.5-5 ट्रिलियन तक तो पहुंच गई है मार्केट कैप। ठीक बोला सर, आसपास ही होगा। हाँ, 3.5 लाख करोड़ है वही। हाँ तो 8 चौका 32 तो 4 ट्रिलियन हो गया करीब। हाँ, तो कोई भी दुनिया में ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो खुद ही मान रहा हूँ। अभी मैं टाइटन का ही देख रहा था, 90-95 पी पे शेयर ट्रेड कर रहा है, वो नीचे आने को कभी राजी नहीं है। नहीं तो अगर आप ये बोलते हो और एफआईआई बेचेगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? एफआई बेचेगा, हमारे यहाँ पे खरीदने वाले इतने हैं ना सर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्या हो गया फिर बाद में वो बेचने किधर जाएंगे? यही होता है भाई। मिलने को तो सब कुछ मिल जाता है, जब बेचना होता है तकलीफ होता है। नहीं नहीं सर, सही है। आप और मैं भी वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये वीकनेस दिखाए मार्केट, तो फिर ऊपर से थोड़ा सा बेचना शुरू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू रोहित भाई। थैंक यू। हाँ, क्यूरियस ट्रेडर। और कम करो ना, इतना सारा एक साथ खा नहीं पाएगा मैं। Hello. Yeah, I यस सर। just wanted to make one small comment about the lower volumes in the market. So अभी तो ये ट्रेडिशनली साल का हॉलीडे ड्रिवन वीक है। बोलो बोलो। थैंक्सगिविंग था, आज ब्लैक फ्राइडे है, तो नॉर्मली एफआईआईज इस समय छुट्टी प्लान करते हैं, तो कौन इंस्ट्रक्शंस है देके भाई? जाते हैं ट्रेडिंग डेस्क पे। सर अभी बोल रहे हैं मैं ये ऑडिबल? क्यूरियस ट्रेडर सर, आपको आवाज नहीं आ रही है? नहीं, ठीक है सुनो। ओके। तो ये जो मार्केट का भी नैरो रेंज बन रहा है और लोअर वॉल्यूम है, दैट कैन बी at least partly explained by the holiday week. That's the point I wanted to make. Thank you. ओके सर। हाँ डॉक्टर निकेश। डॉक्टर निकेश, प्लीज अनम्यूट सर। अनिल कुमार जी, अनिल कुमार अग्रवाल। नमस्कार सद भाई। सद भाई को नमस्कार। शरद सर, मैंने प्रणाम किया सद भाई आपको। हाँ, नमस्कार भाई, बोलो। ऐसा है सर, बाजार के अंदर में अभी फिलहाल जो पोजीशन है काफी नॉइज है, लोग काफी डरे हुए हैं कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कुछ भाव देना चाहता हूँ। अच्छा अनिल भाई। ऐसा है, मेरा भाव है दिसंबर फर्स्ट वीक का 20553 निफ्टी, बैंक निफ्टी 45177 फर्स्ट वीक दिसंबर, डॉ जोन्स 36,500, S&P 500 4898। सिर्फ मैं डॉ जोन्स पे एक चर्चा करना चाहूंगा। डॉ जोन्स का अगर पिछला कैलकुलेशन जाके आप देखोगे तो डॉ जोन्स का एक 2022 में हाई था 34,280, वहां से वो नीचे आया था 28,589, और 34,280 को जब वो क्रैक किया था तो उसे 2% ऊपर जाके 34,921 का हाई बनाया था। फिर वहां से वो क्रैक करके नीचे आया था समथिंग 31,428। फिर जब 34,921 को क्रैक किया था तो 2% ऊपर जाके 35,686 का हाई बनाया था। फिर अभी 35,686 से नीचे 32,327 आया है। तो मोटा मोटी मैं भी पॉसिबल और बोल सकते हो, मैं कंफर्म हूँ कि 35,686 के ऊपर 2% ऊपर 36,500 जाके फिर वहां से वो क्रैक करेगा। और अगर निफ्टी का भाव 20553 और बैंक निफ्टी का 45177 आता है तो नेक्स्ट दिसंबर सेकेंड वीक में स्पेस में आके अगर मेरा भाव कंफर्म होगा तो मैं आऊंगा। ठीक है,
थैंक यू। ओके, थैंक यू। अरे समर, तू क्यों चले गया? ये आनंद, अरे चलने दो ठीक है। आई एम जस्ट फिनिशिंग माय डिनर। हाँ, कितना खाएगा यार? अब क्या करें, अभी अब बचा वही है आपको, और बाकी सब बंद हो गया। गिव मी सम टाइम। अरे चलिए, who's next? सुन, क्या नाम है? सन। Yeah. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Nice to be back and listening to you. And Rohit sir, good evening. Samar sir as well. Good evening. It's always nice to listen to all of you. I just wanted your views, sir. Now that on IEX we have got this decoupling news off the table. The company has continued to give us good profitability, and in the last 5 years, it's doubled. Not great, but for a company that has that's in a sector as narrow as that, I thought the results have been very consistently improving. And with the decoupling news now behind us, I just wanted to have some view. Okay, uh, my thought personally has been that it's actually looking good to pick it up around these levels, but I wanted some thoughts No, around I that. also like the company very much, and I am very bullish. But I will buy only when it touches 45, not before that. Okay, sir. That's yeah. I think that explains a view very very strongly, and I get the message, sir. अरे भाई साहब, एक कंपनी का क्या वैल्यू है? इलेक्ट्रिसिटी 15 जन का स्टाफ है, कुछ नहीं करना है, अब कमीशन मिलता है। Correct. उसको आप इतना वैल्यू क्यों देते हो? फॉर व्हाट? ऐसे ही सब कुछ ओवर वैल्यूड है, ये भी ओवर वैल्यूड है। लेकिन आप दूसरा बात देखेंगे ना, एक कितना 2 साल से 150 और 120-30 में घूमते रहता है। नॉट गुड। सी, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, go for a stock which is moving up. Okay. Right. बहुत सारे स्टॉक हैं, avoid, strictly avoid it. Right, sir. Thank you so much. चंद्र प्रकाश जी बोलिए। अभिषेक भाई बोलिए। गुड इवनिंग समन सर, गुड इवनिंग शरद सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस। हाँ सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है, एक है एफएनओ का स्टॉक है और दूसरा एक आईपीओ रिलेटेड है सर। तो सर एफएनओ का स्टॉक है ये ओबेरॉय रियलिटी, और सर फिलहाल उसके बारे में पूछना था, वो कैसा है क्या है? अभी फिलहाल तो एंट्री ले लिया है। क्या भाव है? 1400। अभी फिलहाल 14, हाँ मैंने लिया था 1380 पे, तो अभी फिलहाल 14.7 चल रहा। सर ऑल टाइम हाई पे है सर अभी तक, पूरा उसका जो 10 साल से ऑल टाइम हाई पे। तो हाँ, तो अच्छा ही है ना। अच्छा है सर स्टॉक, मतलब ब्लू या। चिप है या? और हाँ सर थैंक यू। वो जो और दूसरा, प्रमोटर है ना, हाँ 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 वो बहुत अच्छा आदमी है। सर सीरियसली बताओ, नहीं पकड़ पाया मैं आपको, मतलब क्या नहीं मतलब? नहीं, वो अच्छा आदमी है यार। सही में अच्छा है या मतलब चोर है?
नहीं 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 नहीं। अच्छा, सीरियसली, ठीक है सर। सर दूसरा है सर, आईपीओ रिलेटेड है सर। मतलब ये आईपीओ जो आते हैं सर, वो कौन सा लेना चाहिए? मतलब जैसा मैंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मिस कर दिया, तो वो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए सर? एक आध दो पॉइंट बता ये सकते मेरे हो? को समर नॉलेज सर, नहीं है। समर सर। आपको क्या आईपीओ अप्लाई करना है? हाँ, मैंने आज दो किया है, वो टाटा टेक्नोलॉजी और सब गंधर कर लो, रिफाइनरीज में। लिस्टिंग गेन के लिए सब कर लो, लिस्टिंग गेन के लिए। बाकी ठीक है, बाकी तो प्राइस ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगा। आईपीओ सर, आईपीओ मतलब नहीं लेना चाहिए क्या आपके हिसाब से? नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना पहले तो। नहीं सर, मैंने आज तक कभी आप कौन सा भी आईपीओ अभी तक लिया ही नहीं है, बट वो कैसा सिलेक्ट करना चाहिए सर आईपीओ, वो पूछ रहा था अभी मैं तो प्लीज। अभी तो यूफोरिया चल रहा है, तो आपको लिस्टिंग गेन तो हो ही जाएगा मिनिमम। तो कौन से कंपनी का सिलेक्ट करना चाहिए सर, वो अभी तो पूछ रहा गंदार था। चल रहा है, टाटा आई थिंक बंद हो गया है पूरा, वो खत्म हो गया उसकी डेट। गंदार अच्छा है, फेड बैंक है, सबका ले लो, सब अप्लाई कर लो। लिस्टिंग गेन में बेच देना लिस्टिंग के टाइम पर। अच्छा, वैसा बोलना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है सर, थैंक यू। वो मुझे ये समझता नहीं है कि लोग जब आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, कह रहे हैं इन्वेस्ट करते हैं, बट इन्वेस्ट करते हैं कि ट्रेड कर रहे हैं? और ट्रेड भी क्योंकि नहीं आप अगर करते हैं। क्योंकि ट्रेड आईपीओ में किया है। अप्लाई करके लिस्टिंग पे बेच देना इज अ ट्रेड, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इफ यू बाय इट फॉर 5 years। अब 5 साल के लिए कोई आईपीओ में अप्लाई करके, क्या बात कर रहे हो, इधर तो 3 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अनंत, मैंने अपने जिंदगी का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आईपीओ में किया था। वो मेरा फर्स्ट और आखिरी आईपीओ था लाइफ का। ओके ओके ओके। आज तक I have only applied for one IPO in my life, and that was my first investment in my life. इफ यू रिमेम्बर 1986 में रिलायंस का जी सीरीज आया था, 72 रुपीज। उस टाइम पे 100 शेयर लिया था जी सीरीज। आई एम स्टिल होल्डिंग इट। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, कांट हेल्प इट। एनीवे, रोहित, वन क्वेश्चन। ये Yeah, ईडी का ईमेल लगा? अपा your voice is cracking. बोल। ये ईडी का ई नहीं लग रहा है? E ना? अच्छा, your same E question. Your E was getting wiped out at 19,900, I thought, but actually नो, नहीं, आई मैं एम E, नाउ शिफ्टेड इट टू जून 22 से। so I am taking it as an expand. See, my bearish count will be either an expanded flat or fifth, but not an ending. ED, I'm not so. ED इसमें दिख रहा है, बैंक निफ्टी में दिख रहा है clearly. हाँ, वही तो बैंक निफ्टी में दिख रहा है। एंड निफ्टी में नहीं है। I am disregarding in the Nifty because in December-January 2022, the Adani fiasco happened, हाँ, which kept the Adani prices down for an extended period, which was an artificial thing. So I am just taking it as quite a possibility that this could be an ED with that wave there in where is this I gone? get In you. January ये 22. अडानी निकाल के इंडेक्स बनाना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली, अडानी निकाल के हटा के इंडेक्स बनाना पड़ेगा, तब बैठेगा लग रहा है। So that is one of the things which I was looking at. Otherwise, angle of rise, everything is pointing to 2,500 and a collapse. But anyway, other But alternative I'm is not even looking at 2,500 now. I was thinking that a month back, but अभी तो मैं 2,500 का भी नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है हो गया। 99% हो गया है, बाकी वो 1% चांस है कुछ अगर हो गया तो अजीब। हाँ, ठीक है, ठीक है। If it breaks
18,900, 18,800, I will also jump into the bearish wagon, but I still, anyway, that is debatable. Last 500-600 points. That's it. That is what I was telling Sharat. Ki last 500 points now I will not fight because a lot of technical factors are not giving me comfort now. वॉल्यूम ही नहीं है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे 5 दिन से, क्या वॉल्यूम ऐसा घट गया है which is typically of a bear market bounce. Then you should not buy a falling volume market, you know. Perfect. सही है. Agreed. So we are on the same boat. ठीक है. I'm so therefore just looking at the currency every day. Rupee, USD, INR जिस तरह खड़ा है, it is like 94. रोक सको तो रोक लो. वही तो आरबीआई कोशिश कर रहा है हर दिन की रोक लूं भैया, नहीं हुए. पता नहीं क्या करेगा वो. पिछले बार तो उसने $100 बिलियन बेच दिया. अभी इस बार कितना बेच सकता है? नहीं बेच सकता ना. देश को तो नहीं बेच देगा. नहीं कर सकता है. रोक सको तो रोक लो. It is going up. We are almost what? All-time high close to. Yeah, all-time high close. Yeah. बहता हुआ पानी और बहती हुई हवा को कोई रोक नहीं सकता, और बहता हुआ भाव को. भाई साहब, ये इधर से बर्स्ट होगा ना. तकलीफ यही है कि इधर से बर्स्ट होगा तो इसके साथ में क्या क्या ले जाएगा इस बार. बिकॉज फ्रॉम 2022 ये इसी लेवल 83 पे खड़ा है. 24 महीना ये एक ही लेवल पे खड़ा है. तो ये कुछ सॉरी नॉट 24 महीना, 18 महीना. तो इट्स गोइंग टू बी पूरा साइडवेज है, उतना ऊपर जाता है. So you are looking at 94. At 94, there will be a mayhem in the market because you are looking at a 10% collapse in the market. Hello. 10% collapse in the currency. Hello. Which is huge. Yeah. 4% is given every year. तो ये 5 साल का जोड़ लो. मुझे तो ये लगा somewhere RBI has also started believing the idea that we can manage the volatility in the currency. तो उसने currency volatility has fallen to the lowest in history. Correct. दिन में 2 पैसा 1 पैसा ये क्या है? ये currency movement है. Can I ask question now, Suraj ji? Ask, Baba. Ask. Speaking. Ask, Baba. Dr. Nikesh, if you are able to hear me, please ask. My voice is audible? Yes, loud and clear. निकेश भाई, एक बार बाहर जाके वापस आ जाओ. आपका आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, या हमारा आवाज आपको नहीं सुनाई दे रहा है. Yeah, coming back to Nifty, the point here was from 16th November, I was expecting a decline and a sideways market. तो sideways हुआ है. एक बार के लिए 19,400, 19,450. Then I am expecting next week that Nifty will decline. Speaker. I am expecting Nifty to decline towards 19,450, 19,400 one time, which will again pull in a lot of the bears into thinking that the market will drop down. It should not be the bottom, and it should end up all the way till the first December 25th. Let's see what it will do from there. But I think my view. With this election results, minimum movement of 1,500 points is expected. But let's see. It is possible, but nobody is going to write off BJP so easily. So if you are just talking of a fight between BJP and India, then you will have everything in favor of working in favor of a stable BJP government for another 5 years. So it should push up the market again. Anyway, these are all debatable
things, but No, I did not say it will go down. I said there will be movement of 1500 points. हो सकता है 1500 पॉइंट लगा सकता है, उसमें क्या है. ये market that way 18,800 to 16,800, you have a 2,000 point. You can go up to 2,800, 2,900, which is the max upside, which I would look at. Beyond that, I'm not looking at. Plus the angle of rally from all the way from 2021, that is one of the scariest parts, because the angle is around 60 degrees, so you have a collapse coming which will be like a straight line down. I don't know how to explain this, how those angles work, but yeah, there should be a straight line collapse, and we are once again we should be looking at 14,200 and lower. देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, महीना 1.5 महीना, जनवरी तक खींच लो, और उससे ज्यादा नहीं. जनवरी टॉप वुड बी परफेक्ट. देखते हैं. I have written down that Mr. Anand said so and so thing today. Yes, sir. 19,400 is what I'm looking at. Then a rally again. Okay. और सतीश भाई बोलिए. प्रणाम शरद सर, कैसे हैं? बस ठीक है भाई. समर्थ भाई, रोहित सर, आनंद सर. गुड इवनिंग सर. सर मेरी तरफ से प्रणाम. और रोहित सर पूछ रहे थे उसका आईपीओ का, कि लोग उसमें मतलब इन्वेस्ट करते कि ट्रेड करते, तो उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता था कि अगर तो 30% 30% ऊपर खुल जाए तो फिर तो ट्रेड बन जाता है और एग्जिट कर देते हैं. अगर वो 30% नीचे खुल जाए तो फिर वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है. जैसे कि लोगों का अभी पेटीएम पोर्टफोलियो में पड़ा ही हुआ है 2000 के भाव पे जिन्होंने दिया. तो और भी ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जहाँ पे जो स्मार्ट मनी एग्जिटेड, तो वो फिर पड़ा ही रह जाता है. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर एनालिसिस सर, रोहित सर. Following India charts from last 2-3 years, I'm a subscriber. So wonderful Okay, analysis great. on the global front, because we trade mainly indices, so unable to see so many things which you track. So big fan of your holistic analysis. Thanks so much. And on that IPO add, जैसे आपने बोला ना, but this is the oldest problem. IPO और ट्रेड मतलब लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, लॉस में हो गया तो इन्वेस्टमेंट रख लिया. But if that is it is purposeless na, this kind of behavior. It only shows that you didn't have any starting purpose. If your purpose is to invest, then it should be to invest. तो इसलिए मैंने आईपीओ को छोड़ ही दिया. मतलब आईपीओ जब तक, और क्योंकि हम लोग चार्टिस्ट भी हैं, अपार्ट फ्रॉम आई डू कंबाइन फंडामेंटल्स विद टेक्निकल्स, बट इफ आई डोंट हैव टेक्निकल्स, आई डोंट हैव अ चार्ट, देन आईपीओ इज मीनिंगलेस टू मी. तो आईपीओ जब तक लिस्ट नहीं होता है और एक बेयर मार्केट के थ्रू जाता नहीं है, तब तक मैं उसको छूता नहीं हूँ. एक बेयर मार्केट में उसमें जितनी गंदगी अगर है कोई भी, वो साफ हो जाती है. सो देन यू हैव नथिंग लेफ्ट आफ्टर दैट, देन यू गेट इट एट द राइट वैल्यूएशन. Right, sir. So why buy a Paytm or a Zomato or a Naukri or whatever it is when it just gets listed? और जब उसका पूरा क्रीम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने निकाल के पहले खा लिया है, मतलब ही नहीं है ना. ये गेम को क्यों खेलना है? जो पूरा गेम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही है, वो क्यों खेलना है? पहले आईपीओस क्या होते थे 1992 पे या उसके पहले थे, कि आईपीओ मेंट कि इट इज अ न्यू बिजनेस दैट वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट. Correct. तो आप नए धंधे में पैसा लगाते थे. अब नया धंधा ही नहीं है, वो पुराना धंधा है जिसका क्रीम सब लोग खा चुके हैं और आपको दे रहे हैं. तो ये कौन सा आईपीओ का मतलब हुआ? और बहुत से लोग ये ट्रैक भी नहीं करते कि वो फंड्स को यूज कहाँ पे करेंगे. So that also people are not tracking. They are raising the fund where it is getting used. And the same thing I also, many people ask me कि ये IPO कैसा लगता है. तो I said कि भैया हम तो चार्टिस्ट हैं, तो इसका तो अभी चार्ट बनना शुरू ही नहीं हुआ, तो क्या बताएंगे. I completely agree to that point. हाँ मोरेश भाई बोलो. मोरेश बत्रा. हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरा आई एम अ ट्रेडर, सो मैंने अपना
सिस्टम बना लिया विच इज़ प्रॉफिटेबल, और मैं काफ़ी टाइम से मतलब वो रन कर रहा हूँ व्हाटएवर, बट नाउ आई एम दिस इज़ माय फुल टाइम करियर एंड आई हैव अ लिमिटेड कैपिटल, एंड so I don't want to take leverage. So what are my options? Like how can I, increase और from here? कितना कैपिटल है आपके पास अभी? अभी I'm trading with 50 lakh and मतलब मोर देन इनफ. but it's not more than मतलब enough for me. तो मुझे अगर increase करना है, मेरे पास leverage ना लेने के अलावा options क्या क्या होते हैं? Without taking leverage, borrow. मतलब उसके अलावा और कोई ऑप्शन? मतलब बोरो तो ठीक है, बट वो बोरो करने के बाद भी काइंड ऑफ लेवरेज इंक्रीज हो रही है, अगर मैं लॉस करूंगा तो वो भी नहीं, मतलब आपका बट लेवरेज ही होगी पूछने ना का एक तरह से वो भी. सवाल पूछने का मतलब क्या है कि इफ यू आर सेइंग आई वांट टू इंक्रीज द पोजीशन बट आई डोंट वांट टू लिवरेज, नो, मतलब इसका मीनिंग क्या एज होता है इन इसका? की मतलब नो एज इन लाइक हाउ कैन आई, ये तो मैं खुद का पैसों से ट्रेड कर रहा हूँ. हाउ कैन आई मेक दिस अ बिजनेस? सो हाउ कैन आई लाइक get in contact with some kind of funds or some, those kind of people. You want to manage other people's money? Yeah, मतलब not exactly person to person, but yeah, मतलब how can I get in contact with अरे AIF और मतलब जो. भाई साहब, ऐसे आप जैसे इंडिया में 556 रोज घूमते हैं. Don't think it is so easy. It is not that easy No, just I'm because just talking money. about a hypothetical. Maybe I'm not that guy, but No, someone might be in space, might be. listen to what is being said. Just because you made money in a bull market in a short while for maybe a year does not qualify you to become a person who will manage others' funds. I totally agree with you. I might not be that person. Yeah, So, I and the totally agree. second I'm just point asking the is, options. and the second point is 50 लाख रुपया 90% of India के लिए जिंदगी भर का पैसा है. So be careful what No, you are doing. I totally agree with you. I'm not disagreeing with you. I'm saying, No, but your answer, suppose, you okay, already know suppose the you don't answer. know me. You know the You don't answer know to me. your question. Suppose, Your ansser to your question is very simple, that you go to your friends and family. आपका नेटवर्क क्या होता है? आप सेल्स की बात कर रहे हो कि मैं धंधा कैसे बढ़ाऊं. आपको अगर धंधा बढ़ाना है तो आप सेल्स करो, और सेल्स किससे होता है? जिन जिन all the लोगों को आप professionals जानते हो. say that don't go to your family and friends. I just hear बट that all आपके the पास time. ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि आप वो बिजनेस नहीं कर रहे हो, इसलिए वो ऑप्शन नहीं है. सी आप अगर आप दूसरा ऑप्शन है, आप ब्रोकर, सब ब्रोकर बन जाओ, आप फ्रेंचाइजी बन जाओ किसी ब्रोकर का, तो आपके क्लाइंट्स बनेंगे, तो आप वो क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर पाओगे. आप पहले क्लाइंटील तो बनाओ. Okay. हाँ, पहले क्लाइंटील होगा तो वो क्लाइंट आपका बनेगा ना. आपके पास क्लाइंटील बनाने का जरिया नहीं है आज के तारीख में. You do FNO दैट इज or cash market? You do I do in FNO. Okay, so I'll tell you one thing. You want to increase the capacity. So suppose you take a trade, the margin is 2 lakhs. You buy a corresponding option, your margin becomes 60,000. So 2-3 times leverage, you will get more. So you will be able to Sir, trade more. I already take directional bets only, and I am using all the hedge benefit. So my variance is also to like 15% of drawdown, so I can't take leverage. अभी शरद भाई, विद योर परमिशन, रोहित को एक और सवाल पूछना था. आप पूछो. रोहित, एक्सएलयू हाँ, बोल, क्या बोल रहा है? एक्सएलयू वीकली, एक्सएलयू मंथली. एक्सएयू मतलब गोल्ड. अच्छा, गोल्ड मंथली डॉलर. Gold in dollar terms is surprisingly still bullish. It is. एक ऑल्टरनेटिव काउंट दिख रहा है. जस्ट वांटेड टू बाउंस इट ऑफ यू. हाँ. I know I'm being a little creative here. I am looking at the ED on the monthly chart starting September 2011. हाँ.
the overlap happening between 21 and 20 and 22, and running into ED with 2100, 2150 being a top. नहीं ये no ये हो सकता है. I was also trying to think that if the dollar goes up, how can the gold top out? The only way is that it is a fifth wave of the structure from 2015 से भी मैं अगर लूंगा तो बॉटम को 1-2 लूंगा और पोस्ट कोविड करेक्शन को 3-4 लूंगा तो ये जो करंट प्राइस है फिफ्थ हो जाएगा, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल या कुछ बन के. वो हो सकता है. And it fits with the idea that the dollar goes up, you know. So if it fits with that, gold के बल्ले बल्ले होने वाले हैं. ये 2-3 साल में 3000 हो जाएगा. हाँ, कितना हो जाएगा? साल में 3000 हो जाएगा. 3000. सर इधर 680 दिख रहा है चार्ट. ठीक है. तू भी इधर, मैं भी इधर. सर ऐसा मत बोलो सर, ऐसा ये बात मत बोलो. मैंने वो अमित गुलेचा को ऐसे ही बोला था, मेरे को आज भी बहुत बुरा लगता है. मैंने बड़े थिंक अबाउट इट. So sir, don't ever say that. Don't. क्या बोला? I said तू भी इधर, मैं भी इधर. देखते हैं ना क्या होता है. हाँ ठीक है. Okay. How does it matter यार? क्या है? चलिए. Okay. That's it. चलिए next. Bulls and Bears, बोलो भाई. But there's one, Anant, there is one tricky part about gold, and that is even though we are discussing in dollar terms, in rupee terms, rupee devaluation is going to support gold prices. So क्या है कि Indian buyers of gold will not be that affected. Maybe it will just hold the price 60,000-70,000. Yeah. Bulls and Bears, बोलो भाई. अरविंद Kachela. Good evening everyone. Sharad bhai, Samar bhai, Rohit bhai, Anand bhai, बताएं. Good evening everyone. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आनंद सर से था, जो ऑलरेडी मुझे निफ्टी का व्यू चाहिए था उनके ऊपर, जो ऑलरेडी आई थिंक उन्होंने दे दिया है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. दैट्स व्हाट. अंकित जांगरा. हेलो. हाँ जी सर. हाँ जी, मेरे को जी आनंद जी से पूछना था, जो अभी आप जैसे निफ्टी का टारगेट बता रहे हो, मतलब किस बेस पे आप बता रहे हो? मतलब टारगेट ये पूछना चाहूँगा थोड़ा. तो अच्छा, आप ऊपर भी तो जा सकता है वो. हाँ, आपको जहां तक ले जाना है आप ले जाओ. 20-500 तक तो मैं आपके साथ हूँ. उसके बाद में देखते हैं मार्केट जो पैटर्न बनाएगा उसके हिसाब से चलते हैं ना. जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी नहीं है. जैसे आप जैसे बता रहे थे कि भाई जनवरी तक जैसे आपने कोई टारगेट बोला था, अभी मैंने सुना था, स्पेस में ही था. तो इतनी जल्दी तो कैसे आ सकता है टारगेट? क्या पता. 18,800 से 19,800 तो 3 हफ्ते में आ गया. तो यहाँ से 1000 पॉइंट एक महीने में आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता? आप कुछ 14 समथिंग का बोल रहे थे जनवरी तक. नहीं 14 का टारगेट मैं अभी नहीं दिया. अच्छा, अभी तो मैं तेजी में हूँ. 14 कहाँ से आ गया? नहीं, पता नहीं. मैंने और एक और बात, आपने कभी लिमिट डाउन के बारे में सुना है मार्केट का? नहीं सुना. नहीं, मैंने देखा है. मार्केट एक दिन में 18% नीचे गिर सकता है. ठीक है, वो उसके जस्टिफाई भी ना. 2 दिन 18 कर लो, 20,000 का 14,000 में 12,000 हो जाता है. नहीं, उसके लिए कोई ऐसा रीजन भी तो होना चाहिए ना कि भाई तभी वो गिरेगा. रीजन आपको बाद में मिलेगा, मार्केट पहले गिरेगा. नहीं, वो लेकिन अपना वो ठीक है आपकी बात. ये गलतफहमी में मत लेना कि मार्केट पहले रीजन बताएगा फिर गिरेगा. मार्केट पहले बाद में रीजन मिलेगा आपको. ठीक है सर, मैं आपके साथ एग्री हूँ. लेकिन एक बात वो भी तो ना, जैसे अभी मार्केट कुछ पैटर्न तो बनाएगा ना. जैसे अगर उसको गिरना है इतना, तो बन रहा है ना पैटर्न. इतना वॉल्यूम काम हो गया.
और क्या मांगता है पैटर्न में? ठीक है, लेकिन उसके लिए ये इतना गिरना वो भी तो नहीं है ना। भाई साहब आपको 30,000 का निफ्टी चाहिए ना, चलो बोलता हूँ 30,000 हो जाएगी निफ्टी। और कुछ नहीं, वो बात नहीं कह रहा मैं। ठीक है, आप मैं तो जैसे आप इतने शॉर्ट टर्म टाइम में जैसे बता रहे हो टारगेट, तो उसके लिए मैं बस पूछ रहा था आपसे। वो आपसे हिसाब मांगने आए हैं आनंद सर। अरे कैसा कैसा तो दक्षिणा तो क्या सिखाता हूँ। हेलो, कैसा गुरु दक्षिणा कैसा? लेकर आया? समझा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझा नहीं। नहीं वो छोड़ो, चलो। छोड़ दो। अच्छा, और डॉक्टर निकेश भाई। Hello everyone. Thanks for organizing this. It's a very always lot of interesting things to listen. शरद जी से एक सवाल था कि मैंने उनका वो देखा था कि ट्वीट की उन्होंने बोला था कि पीएफसी और आरईसी थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो क्या आपकी क्या थीसिस है इसके बिहाइंड कि वो एक्सपेंसिव क्यों है? और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो इरेडा अभी वो लॉन्च हुआ है, तो इस पे मतलब कि क्या आपके क्या विचार है, जो किस वैल्यूएशन तक किस पी वैल्यूएशन तक घुसना ठीक रहेगा? तो अगर आप इस पे कुछ बताओ। कौन सा चीज पूछ रहे हो? तो पहले तो आपने ट्वीट पे लिखा था कि पीएफसी और आरएसी आपको एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो हाँ, तो 2 टाइम्स बुक हो गए अभी। हाँ जी, 2 टाइम्स बुक हो गए, पर इन्होंने जैसे डिविडेंड्स भी अच्छे दे रहे हैं, 3 देते हैं, तो मैंने उस थीसिस को लेके थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था, तो अभी आपको लग रहा है कि एक्सपेंसिव है? नहीं, मैं देखिए आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करता हूँ। बिल्कुल। तो मेरा अच्छा, भी एक हाँ बोलिए। इसमें स्क्रीनर में पीएफसी के जो मैं अगर वो देखता हूँ ना, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मैं तभी तो मुझे भी डाउट लगा, तभी मैंने आपकी, तो इनका कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है पीएफसी वालों का ना, तो वो उस पे आप थोड़ा बता पाओ ऐसा। नहीं यार, ये गवर्नमेंट कंपनी का नहीं बोलेगा ज्यादा। ठीक है, चलो। और सर ये इरेडा जो इसका अभी IREDA इसका आईपीओ अभी आया है, तो इस पे आपके क्या विचार है? मतलब कि ये क्या वैल्यूएशन तक जाना ठीक रहेगा इसमें? अरे मेरे को मालूम। अरे देखिए, आप है ना गलत आदमी से पूछ रहे हो। आईपीओ मार्केट मेरे लिए बिल्कुल जीरो है। अच्छा, ठीक है। आई डोंट इंडल्ज इन ऑल दैट। ठीक है, तो एक सवाल। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कमेंट। ऑलवेज प्लेजर टू लिसन यू। आप पूछ लो। एक रोहित सर से था एक कि सर आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपका मुझे काफी मुझे आपके बारे में भी रिसेंटली पता चला। तो I have also some ideas. I'm also working in the similar space of creating technologies for finance. So I would like to speak with you. Obviously, I will bring like a lot of interesting things for discussion. So it would be interesting if we can have a meet. मिलना है आपको, आप मुझे ट्विटर पे मैसेज करिए, डीएम करिए। ठीक है, ओके, आई एम डूइंग दैट। ओके, यू आर इन मुंबई? ओके, नो, I'm in Delhi, Gurugram. अच्छा, ओके, या ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। श्योर, थैंक यू एवरीवन। स्नाइपर ट्रेडर, स्नाइपर ट्रेडिंग। सिर्फ आना ही था यार। चेतन भाई बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है कि ये जो अभी अगर अडानी का जो स्टॉक है उसमें कोई इशू आता है, तो उसकी वजह से क्या कल को मार्केट में कोई गिरावट हो सकती है बड़ी? नहीं हो सकती है। और एक ये भी है कि सर क्या बियर मार्केट का इंतजार करना चाहिए सर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कंटिन्यूअसली जो हम मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको सिप मोड में करते रहना चाहिए?
सिप मोड में करते रहो। अच्छा सर, एक और सवाल था कि जब कोई कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है तो उससे मार्केट कैप कम हो जाती है या बढ़ जाती है सर? मतलब इसका क्या फायदा उतना ही होता है? रहता है, उतना ही रहता है। नंबर अच्छा ऑफ उससे शेयर्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, उससे कोई वो नहीं होता है। एक सवाल समर सर से था। अ, सर ये डेनोरा जो स्टॉक है, मतलब इसका कैसा लगता है आपको सर फ्यूचर? इसका मतलब जैसे रिजल्ट्स हैं उसको देखते हुए, मतलब एज अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये जो सेक्टर है ये कैसा लगता है? डिनोरा अच्छा है भाई, 800 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छा है। हाँ सर, वही मार्केट के बहुत कम है, तो काफी मुझे भी आपसे ही मतलब मैं आप दोनों को ही फॉलो करता हूँ। और सर एक चीज और बताइए सर, जैसे लास्ट मैंने सर मई 2022 से सर इन्वेस्टमेंट बेसिकली करना शुरू किया। अभी सर रिटर्न्स भी अच्छे हो गए हैं, चूंकि गिरावट में मिल गए थे शेयर उस टाइम पे, या थोड़ा स्ट्रेटेजिकली मतलब ठीक पॉइंट्स पे, मतलब थोड़ा टेक्निकल का भी बेनिफिट उठा के बॉटम्स पे बाय कर लिया था। तो सर मतलब अभी रिटर्न से ठीक आ रहे हैं, मतलब अभी गिरावट भी हुई थी मार्केट में बीच में, लेकिन बल्कि गिरने के बजाय पोर्टफोलियो अभी बढ़ ही गया है। और मैंने शायद पहले भी आपसे पूछा था कि मेरे पास 40 स्टॉक्स की स्क्रिप्ट है। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से वाइब आती है कि है ना 40 स्टॉक्स में बने रहना ज्यादा ठीक है, ताकि धीरे धीरे मैं कुछ एक की तरफ कंजर्वेटिवली मतलब 10-15 स्टॉक्स पे ही अपना एसआईपी करता रहूंगा, सिप करता रहूंगा। बराबर, एकदम बराबर है। चेतन भाई, क्योंकि म्यूचुअल फंड चालू कर दो ना, म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन कर दो। नहीं सर, होता म्यूचुअल है यार। फंड नहीं, अरे यार भाई, ऑप्शंस तू तेरा को जो करना है करना, हमको क्यों बताता है? ऑप्शन थोड़ा मिल जाता है सर, वो चॉइस मिल जाती है कि किसी में किधर फंड को अपना पैसा डालना है, ताकि पोर्टफोलियो अपन 20% से ग्रो कर सके एनुअल बेसिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एबीडी 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 कौन है? एबीडी, हाँ, अमोल। हाँ भाई बोलो। राजा 358। सर मैं बोलूं? हाँ, हेलो बोलो एवरीवन। बोलो। सर मेरा सवाल थोड़ा रोहित सर से था कि आजकल मार्केट ऐसी हो रखी है कि जिसमें मतलब बहुत एक्सपायरियों के चक्कर में गैप अप गैप डाउन, कोई ट्रेंड नहीं। अगर हमने कुछ डायरेक्शनल सोच लिया हमारे फेवर में भी जा रहा है, तो पहले एसएल काट करके इतनी वॉल्टिलिटी करके इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करके जाता है कि आदमी पहले ही निकल जाता है। और जो निफ्टी के अच्छे स्टॉक हैं वो भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आज की मार्केट में कैसे ट्रेड करके सरवाइव किया जाए? इंट्राडे में गैप अप इतना हो जाता है कि वहाँ करने को कुछ बचता नहीं है, लास्ट में 15-20 पॉइंट में ऊपर नीचे करते रहते हैं। और पोजिशनल लेके जाओ तो जो ट्रेंड हमने सोचा है करके जाओ, तो वो अगले दिन पता चलता है कि मतलब या तो गैप अप मार दिया या गैप डाउन मार दिया। मतलब किसी भी तरह से हर तरह से साइकोलॉजी बिगाड़ के रख दे रहे हैं ये। तो कोई ऐसा, इस चीजों से कैसे बचा जाए? तो कभी कभी ऐसा करना होता है कि बाजार से दूर भी रहना पड़ता है, हाँ नहीं, दूर तो और उसका कोई तो हाँ, क्योंकि हमेशा बाजार ऐसा नहीं रहेगा। ट्रेंड तो बाजार में बनता ही है, बट कुछ एक कभी कभी बीच में फेज आता है कि ट्रेंड बनने के पहले फ्लैट हो जाता है, नॉन नॉन ट्रेंडिंग, नॉन रेंज बाउंड। हाँ। जब रेंज बाउंड मार्केट में सब लोगों के हिट होता है। अब अगर वो हिट आप को लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक आध महीने उसको छोड़ देने का, नहीं करने का कुछ। अच्छा अच्छा। जब ट्रेंड कंफर्म हो जाए कि हाँ ट्रेंड इस तरफ जा रही है,
तब वापस उसमें वो तो सर पार्टिसिपेशन शुरू ट्रेड करें। क्लियर होने के बाद पता लग पाता है ना। अब जैसे एक दिन गैप अप खोला, 2 दिन गैप अप खोला, हम होप करते हैं चलो गैप फिल करने आएगा, पता चलता है 1 दिन 2 दिन वही रुका, फिर गैप अप मार के ऊपर चला गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर पता चलता है कुछ दिनों बाद अचानक से आके गैप फिल गया, कर गया। तो मार्केट मतलब तो ट्रेंड का भी तो सही स्मूथली नहीं जा रही है किसी साइड। नहीं, वो अभी नहीं जा रही है, बट हमेशा तो ऐसा नहीं था, तो हमेशा ऐसा रहेगा भी नहीं ना। अच्छा। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा और ना हमेशा ऐसा रहता है। तो एक फेज आता है कभी, जब बीच में जब ऐसा कई दिनों तक होता है, उस फेज में अवॉइड करना ही कोई तरीका है, हाँ कोई और हाँ, तरीका नहीं है। वो भी है। अब जैसे टेक्निकल हमने सीखा था कि अगर लार्ज टाइम फ्रेम में देखो, हमने मंथली कैंडल देखी, पिछले मंथ की जो है मंथली कैंडल, उसने लास्ट 3 मंथ की कैंडल को खा गया और नीचे क्लोजिंग भी दी। लेकिन बट इस मंथ क्या हुआ, वापस ले जाके ऊपर वहीं पहुंचा दिया नीचे का। मतलब जो अकॉर्डिंग टू 3 मंथ का अगर वो लो तोड़ रहा है तो उसको नीचे जाना चाहिए था एज पर टेक्निकल। लेकिन वो उसने उसका लो नहीं तोड़ा, वापिस वहीं पहुंचा दिया जहाँ पे से गिरा था। तो तो ये कैसे कॉमन कैसे। थियरी होगी ना। नहीं नहीं, ये चीज जो है ना, ये ऐसा है कि ये जो सिंपल चीजें है ना, ये हाँ सब लोग जान गए हैं कि हाँ ये होगा तो ये ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज पे उल्टा ही होता है। हाँ हाँ, मतलब वही। ब्रेकआउट, इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं ना, तो हाँ। ब्रेकआउट पे तो उल्टा ही होता है। तो अभी आपको एंटिसिपेशन करना सीखना पड़ेगा। अच्छा आपको ब्रेकआउट एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हो सकता है, और उसके अच्छा। पहले पोजीशन बनाए, उसका तरीका सीखे। हम्म। तो थोड़ा एडवांस लर्निंग करनी पड़ेगी चार्ट्स की आपको। बेसिक लर्निंग, बेसिक जो है उससे नहीं होगा काम। हाँ, वो सब तो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। हमने सीखा था मार्केट ऊपर जाएगी तो बिक्स क्रैश होगा, नीचे जाएगी बिक्स बढ़ेगा। सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम्म। तो ये भी है। और दूसरा सर एक चीज पूछना था कि ये निफ्टी दिसंबर तक क्या मतलब अभी और चांसेज है दिसंबर तक ऊपर जाने की, या कुछ करेक्शन बनता है अब। मेरे हिसाब से तो चांसेस बहुत ही कम है। करेक्शन के या ऊपर जाने के। नहीं, ऊपर जाने के। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है सर, बस थैंक यू, मेरा यही सवाल था। श्योर। बलवंत सिंह राणा। मितेश जैन। हाँ जी, क्या भाई आप बोलो। नमस्कार शरद भाई, कमल भाई बोलो। यस सर। सर मैं ये आइडल लाइसेंस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कुछ पूछना चाहता था। सर आपकी आवाज ही को आ रही है। सर ये मैं आइडल लाइसेंस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पूछना चाहता था। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है बट इको आ रहा है भाई। सर ये आइडल लाइसेंस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में थोड़ा पूछ रहा था सर। सर ओनली FO stocks and MNC companies. ठीक है सर, ओके, इतना ही पूछना था मुझे। थैंक यू। थैंक यू। हाँ भाई भाई अभय कुमार अनम्यूट कीजिए सर। अभय जी अनम्यूट कीजिए इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। राजा 358। अजय सिंह। नमस्कार सभी को। सर मेरे को ये पूछना था, ये मैं एक्चुअल में मेरे होल्डिंग है वो करीबन मैं ट्रेडिंग के लिए मैंने उसको लिया था
करीबन 4 महीने पहले, तो वो स्टक है मतलब मेरी होल्डिंग उसमें, और मेरे को उसमें ज़रूरत थी, निकालने थे, तो मेरे को ज़रूरत है, फरवरी में ज़रूरत है मेरे को उस अमाउंट की। तो कुछ है चांसेस बनते हैं सर यहाँ से अभी, क्या अपसाइड मूवमेंट बनेगा इसका, या फिर इसमें फिर लॉस ही बुक करना पड़ सकता है? फैब में मेरे को फैब में ज़रूरत है ज़रा मतलब अमाउंट की, तो आपके क्या विचार है सर इसके लिए? सर आपको पैसे की जरूरत है तो आप जो क्यों पूछना है अभी डाइवेस्ट करूं कि फरवरी में डाइवेस्ट करूं? बिकॉज यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। आप ऊपर या नीचे कोई टाइम तो होता नहीं है कि भाई आपको निकालना है तो निकाल लीजिए कल के दिन में, ओके, डजंट मैटर। फिर बाद में 2-5% प्लस माइनस तो होता ही रहता है हमेशा। यू कैन नॉट परफेक्टली टाइम द मार्केट। पर सर अभी तो ह्यूज लॉस में हूँ, थोड़ा सा सोच रहा था रिकवर हो जाता। वो नहीं पता अजय भाई, वो एक्चुअली वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी पर्सन्स पोजीशन हियर, बट वो आप देख लीजिए क्या है आपके पास, कौन सा स्टॉक है। ठीक है सर। आपको चाहिए वो पैसा है तो आप अभी निकाल लीजिए, ज्यादा लॉस होगा तो फिर आपको लॉस होगा। ज्यादा डाउन जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, अगर ऊपर जाएगा तो नसीब की बात है। इट्स ऑल ए होप ट्रेड नाउ एज पर इफ यू आस्क मी। ओके, थैंक यू। सौरव सरकार। हाँ सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। मतलब मैं नया हूँ लास्ट 3 साल से, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भिक्स और मतलब इंडेक्स अलग अलग चलता है, मतलब भिक्स बढ़ता है तो जनरली प्राइस गिरता है, और भिक्स गिरता है तो प्राइस बढ़ता है। बट मैं देख रहा हूँ कि दोनों एक साथ, मतलब निफ्टी भी बढ़ रहा है और भिक्स भी बढ़ रहा है, तो मतलब इसका रीजन क्या है? रोहित सर, अनंत सर। हेलो हेलो, मेरा एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ Anand सर। sir, Rohit sir, if you can answer. Sharad sir. Where is the VIX rising? Saurabh, यस, हाँ बोलिए। Where is the VIX rising? मतलब मान लीजिए जब प्राइस भी बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ रहा है और भिक्स भी साथ ही साथ में बढ़ रहा है, ठीक है? कहाँ बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है?